Hello friends, once again I am here with my new video based on 12th standard maths 2 differentiation including 1.1 part B. In part 1 we have already studied question number 1 and question number 2, and today we are going to deal with question number 3 and remaining part in this video. Okay students, we have already studied that for this chapter you should know these all formulas. Okay students, so let's start with continuing my 1.1. Okay, let's start with this. So students, in question number 3 you have first question x square plus 4x plus 1 whole cube plus x cube minus 5x minus 2 whole raised to 4. So students, we will start with our assumption. Let y is equals to given question. Differentiating with respect to x will give me dy by dx, differentiation of entire term upon dx. Now students, you can see here there are two individual terms. So differentiating individually them, we will get differentiation of first term with respect to dx plus differentiation of second term with respect to dx. Now beta, here you can see this is x raised to 3. X raised to 3, that is x raised to n type formula. So it will become 3 into x raised to 3 minus 1, that is 3 into x raised to 3 minus 1, 2 into derivative of the bracket. Here also x raised to n type beta, so 4 into x raised to 4 minus 1, that is 3 into derivative of bracket. Okay students, you got this line. After beta, this will remain as it is. Here in this bracket you have three different terms. Differentiating each of them will give me this line, this bracket, and here also there are three terms. Differentiating each of them will give me this part. Okay, now this will remain as it is. Differentiation of x square will become 2x. Differentiation of 4x will be 4. And differentiation of 1 will be 0. So do not write this. This part you got it. Next, 4. This bracket. Now, differentiation of x cube. X cube means x raised to n. So 3 into x raised to 3 minus 1. 3 into x raised to 3 minus 1. That is 3x square. Minus differentiation of 5x will give me 5. Minus differentiation of 2 will be 0. So this part will be omitted. So this will come this part. Now beta, here you can take 2 as a common. तो 2 कॉमन लेके 3 में मल्टीप्लाई कर दिया 6. ये ब्रैकेट बन जाएगा x plus 2 and this part, and you will take it as it is. So students, you can see here this is also similar to previous questions only, where you have given function, you have to assume and differentiate with respect to x and use these formulas. Okay beta, you can copy this. So students, now we are going to study two more formulas. First, u into v rule, and second is u divide by v rules. And students, you have already studied these two formulae in 11th. What is u into v rule beta? What is u into v rule? U into derivative of v plus v into derivative of u. Simple. U into derivative of v plus v into derivative of u. U upon v का क्या बेटा? V into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. Okay beta, these two formulae. And now we are moving to question number 2, where we have to use u into v rule. Okay students, let's see. This is a given question where one bracket is multiplied with second bracket. Okay, so let y is equals to entire term. Differentiating with respect to x will give me dy by dx into derivative of entire term upon dx. Now beta, it is u into v. U into v. So we will use u into derivative of v plus v into derivative of u.
देखा बेटा कैसे गिर गया, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. नाउ दिस विल रिमेन एज इट इज. नाउ बेटा डेरिवेटिव इसका करना है अपने को. सो डेरिवेटिव ऑफ x raised to n. What is x raised to n? n into x raised to n minus 1. So 8 into x raised to 8 minus 1 7 हो जाएगा बेटा. And derivative of bracket, जिसको bracket माना x माना. Now here also this will remain as it is. x raised to n का derivative लिखो बेटा. n into x raised to 5 minus 1 that is 4 into derivative of bracket x. Now बेटा यहाँ से सबको समझ में आया. Now here it will remain as it is. This will also remain as it is. Now there are three terms. Individually we are going to differentiate each of them. Derivative of 3 plus derivative of x plus minus derivative of x square. This will give me, this will remain as it is. This will also remain as it is. And here differentiation of 3 will be 0. Differentiation of x will be 1 minus differentiation of x square. X square क्या होगा बेटा 2x. So 1 minus 2x. Okay बेटा. Plus यहाँ पे लिखा बेटा. This will remain as it is. This part also remain as it is. And differentiation of 1 plus differentiation of 4x. Differentiation of 1 क्या होगा बेटा 0. तो 0 plus differentiation of 4x क्या होगा बेटा 4. तो 0 plus 4 कितना हो गया 4. Now बेटा we will arrange the answers. This is 8. This bracket, then this bracket, then this bracket. मतलब increasing order of the power. 8, this, and this. Now 5 4s are 20. First this bracket you will write, and lastly you will write this bracket. Power raised to 8. Okay, beta. Please pay attention. In this question you had used u into v rule. Okay, you can copy this. So beta, let's start with the next question. Next question is question number 3. Here beta you can see it is x divided by under root 7 minus 3x. So we have to use u upon v formula. It is v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. हम लोग ये formula use करेंगे बेटा. So in solution first we will assume that is let y is equal to x upon under root 7 minus 3x. Differentiating with respect to x, we get dy by dx in equal to differentiation of each term upon dx. Now we are going to use differentiation of u upon v formula. So it is v denominator into differentiation of numerator minus numerator into differentiation of denominator upon denominator square. Now beta, we have used u upon v formula. Now it will remain as it is. Differentiation of x will be 1 minus x. What is differentiation of root x? 1 upon 2 root x. So it became 1 upon 2 root x into differentiation of x. Here beta, square root and square will get cancelled and it will remain 7 minus 3x. Now beta, 1 multiplied by this thing will give me under root 7 minus 3x minus x ones are x upon this part into differentiation of each term. So differentiation of 7 will give me 0 minus differentiation of 3x will give me 3. So 0 minus 3 will become minus 3. Now beta, here you will cross multiply. So root into root will get cancelled. So it will be 2 into 7 minus 3x. Beta, root a into root a is equal to a. So if root into root we multiply, root will get cancelled. So it will become 2 bracket में 7 minus 3x minus x. ये पार्ट क्या होगा बेटा minus 3 upon 2 into 2 under root 7 minus 3x, this part and this part denominator. Okay, this will get multiplied. Now beta, 2 7s are 14 minus 2 3s are 6x minus multiply करोगे बेटा plus 3x हो जाएगा बेटा. 14 minus 3x न्यूमरेटर में होगा. In denominator
You can write is as a 1 upon 2. What will be square root? 1 upon 2. And here it is 1. So a raised to m into a raised to n का फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी. So 1 upon 2 plus 1 कितना होगा बेटा? 3 upon 2. तो पावर अपना 3 upon 2 हो जाएगा. Okay बेटा? Did you understand? See here. First we have used u upon v formula. Then differentiation of each term. Here you cross multiplied and now you multiply with a raised to m into a raised to n formula. Okay, copy that. So students, now we are moving to question number 4. Okay, it is lengthy question beta. As you can see here, in fourth question again you have u upon v rule. So let y is equal to given question. Differentiating with respect to x will give me dy by dx equal to differentiation of entire term u upon v, ठीक है, with respect to x. Now what is u upon v rule? V into derivative of u minus u into derivative of v, okay, v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. ओके बेटा, यहां पे हमने u upon v का फॉर्मूला यूज किया है. नाउ बेटा as you can see this will come as it is here. x raised to n का फॉर्मूला यूज करो. व्हाट इज x raised to n? n into x raised to n minus 1, that is 5 into bracket raised to 5 minus 1 4. Differentiation of x minus this will remain as it is into 3 into x raised to 3 minus 1, 3 into x raised to 3 minus 1, that is 2 into derivative of this bracket upon 3 to the मतलब a raised to m raised to n क्या होता बेटा? पावर पर मल्टीप्लाई 3 to the 6. This will come as it is, this will come as it is. Here differentiation of each term, 3x differentiation of x cube minus differentiation of 5 minus this part into differentiation of x cube plus 3, differentiation of 3. Okay, you can skip this step and directly you can go to next step also if you wish. So now these two terms, now please pay attention here in this part and this part, right side and left side of the minus, we took x cube plus 3 and x cube minus 5 common. So we took x cube plus 3 2 times, x cube minus 5 4 times common. So what we got in this side, एक x cube plus 3 एक्स्ट्रा बचेगा, 5 बचेगा और ये ब्रैकेट सॉल्व. सो ये x cube plus 3 एक बार लिखा है बेटा, 5 लिखा है और ये ब्रैकेट सॉल्व करके क्या होगा? 3x square minus 0, that is 3x square. ओके, माइनस यहां पे बेटा x cube minus 5 कॉमन में बचेगा, तो x cube minus 5 लिखा है बेटा, कॉमन में ये बचेगा, ये तो चला गया. नेक्स्ट 3 बचेगा बेटा and this bracket sum, this is 3x square again. So बेटा this will come as it is. कॉमन लेने के बाद प्लीज पे अटेंशन, आपने क्या कॉमन लिया है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने x cube plus 3 raised to 2 कॉमन लिया, कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो आप मिनिमम कॉमन लेते हैं. x cube minus 5, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, अब 4 कॉमन लोगे. ओके, you come to this step. Now this 2 will come as it is. Here you will multiply, you will get 15x raised to 5 minus 45x square. Again you will multiply here also, you will get 9x raised to 5 minus plus 45x square. Now beta 15 minus 9 6x raised to 5 plus 45 90x square. These two bracket come as it is. Now take the common out. तो 6x square कॉमन बेटा बाहर ले आपको क्या मिलेगा? x raised to cube plus 15. And please pay attention here, these two are same. ये ऊपर में बेटा आपका a square, नीचे a raised to 6 है, कट करो कितना आएगा? a raised to 4. ये नीचे a raised to 4 लिखा है. ओके बेटा, by this you complete this question. Okay, you can copy this. So students, next question is question number 5.
here you can see beta there are two terms which are multiplied, so we will use u into v का rule. Okay, so let y is equals to given question, differentiating with respect to x will give me dy by dx, that is differentiation of each term divided by dx. now beta u into v का rule, u into v का rule क्या है बेटा, v into derivative of u plus u into derivative of v. Okay बेटा, now this will remain as it is. x square का फॉर्मूला क्या है बेटा, 2x. ओके, x स्क्वायर का क्या बेटा, 2x into derivative of x. here ये पार्ट ऐसे उतर गया बेटा, x क्यूब का फॉर्मूला क्या है बेटा, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर into derivative of x. now बेटा ये ऐसे उतर गया, ये ऐसे लिखोगे आप लोग. now please pay attention, here derivative of 1 plus derivative of sin square. ओके, डेरिवेटिव ऑफ 1 गायब हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, और यहाँ पे x स्क्वायर sin स्क्वायर क्या होगा, 2 sin. x स्क्वायर क्या होगा, 2x, तो sin स्क्वायर क्या होगा, 2 sin into डेरिवेटिव ऑफ sin. डेरिवेटिव ऑफ sin का मतलब यस, डेरिवेटिव ऑफ sin का मतलब बच्चे लोग cos x. here it will remain, these two will remain as it is. derivative of 1 becomes 0. derivative of cos स्क्वायर का होगा बेटा 2 cos into derivative of cos. डेरिवेटिव ऑफ cos का माइनस साइन, वो माइनस ये प्लस को माइनस बना देगा. ओके, यहां जो माइनस आएगा बेटा वो इसको माइनस कर देगा. नाउ बेटा यू कैन सी हियर 1 plus cos स्क्वायर इधर 3 टाइम्स है, इधर 1 plus cos स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स कॉमन ले लिया. 1 plus sin स्क्वायर यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम मैंने कॉमन ले लिया, तो मतलब मैंने ये पार्ट कॉमन लिया. ओके, so यहाँ पे क्या बचा, 1 plus cos square x 2 and this bracket, this will become 2 sin x cos x minus यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, ये पार्ट बचेगा एक एक्स्ट्रा और 3 बचेगा, तो 3 1 minus 1 plus sin square x into 2 cos x sin x बन जाएगा बेटा 2 sin x cos x. now बेटा 2 sin x cos x 2 sin x cos x सेम है, और ये फॉर्मूला था sin 2 थीटा का, तो ये कॉमन ले लिया और sin 2 थीटा ले लिया आगे. तो आगे बेटा sin 2 थीटा, these two brackets, यहां पे क्या बचेगा बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 plus 2 2 जा 2 1 जा 2 plus 2 into cos square थीटा 2 cos square थीटा. यहां पे 3 का मल्टीप्लाई करो बेटा, -3 1 जा -3 into -3 plus sin square थीटा -3 sin square थीटा. तो बेटा ये पार्ट आपका ऐसे रहेगा, यहां पे चेंजेस होगा बेटा, 2 को 2 लिखोगे, व्हाट इज cos square थीटा 1 minus sin square थीटा. अपना फाइनल आंसर को sin स्क्वायर में लेना है, तो 1 minus sin स्क्वायर थीटा, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2 into sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा. तो बेटा लास्ट लाइन आ गया 2 plus 2 4 में से 3 गया 1 minus -2 -3 -5 sin स्क्वायर थीटा. ओके बेटा, प्लीज पे अटेंशन, हमने कुछ अलग नहीं किया है, पहले u into v लगाया और फिर डिफरेंशिएट करते 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 यहां तक पहुंच जाएंगे. कॉमन लिया है, जो पार्ट कॉमन है कॉमन ले लो, इधर हमने cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में कन्वर्ट किया है और फिर फाइनल आंसर लिख दिया है. ओके बेटा, यू कैन कॉपी दिस. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7. ओके बेटा, इन क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव रूट cos x प्लस रूट cos रूट x. सो a प्लस b का फॉर्मेट है. सो बेटा after assuming and differentiation writing, you will write that let y equals to given question, differentiating with respect to x will give me dy by dx. Here differentiation of entire term upon dx, since it is a plus b, so you will differentiate first term and differentiate second term individually. now बेटा ये पार्ट आपने कर लिया, उसके बाद क्या होगा, रूट x का क्या है डेरिवेटिव, 1/2 रूट x into derivative of x plus derivative of root x, यहां पे भी क्या होगा 1/2 root cos root x into derivative of cos root x. ओके बेटा, नाउ प्लीज पे अटेंशन, डेरिवेटिव ऑफ cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x अपॉन दिस पार्ट. हियर cos root x का क्या होगा बेटा, माइनस साइन रूट x, तो माइनस साइन रूट x अपॉन दिस पार्ट इनटू रूट साइन का रूट x का डेरिवेटिव. ओके बेटा, यहां पे एक फंक्शन है, यहां पे नहीं है, यहां पे एक और फंक्शन है रूट x का, तो रूट x क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में 1/2 रूट x. यू कैन सी है यहाँ पे 2 रूट x लिखा है,
That is for root x. Now you will multiply 2 to the 4 root x into cos root x. Okay बेटा, समझ में आया क्या करना है आपने को बेटा? You can copy this. Next question is question number 7. Here you have log of sec 3x plus tan 3x. So in solution, let y equals to log of sec 3x plus tan 3x. Differentiating with respect to x. यहाँ तो कॉमन है बेटा. dy by dx is equals to differentiation of entire quotient upon dx. तो पहला फंक्शन कौन सा बेटा आपका log? Yes, पहला फंक्शन कौन सा log? So log को क्या होगा बेटा? Log x का क्या होता है? 1 upon x into differentiation of x with respect to x. Okay? So ये टर्म तो ऐसा है बेटा. Now here is a plus b का फॉर्मेट. So differentiation of first term plus differentiation of second term. हम लोग ऐसा लिखेंगे. ये ऐसे आएगा बेटा. What is sec x का डेरिवेशन? डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec x का? Yes, sec x into tan x. तो बेटा क्या होगा? sec x into tan x into differentiation of 3x plus what is differentiation of tan x? sec square x. तो sec square x लिखोगे into x का डिफरेंशिएशन मतलब 3x, तो वो भी हमको यूज करना पड़ेगा. ये पार्ट ऐसे आएगा ना. d 3x का क्या होगा बेटा? 3 होगा. 3x का क्या होगा बेटा? 3. ओके, तो 3 आके लिखोगे तो 3 sec 3x into tan 3x प्लस इसका भी 3 होगा 3 into sec square 3x. ना बेटा इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? 3 sec 3x कॉमन है. 3 sec 3x इतना पार्ट कॉमन है, ये प्लस के आजू बाजू में से बेटा. ओके, यहां से कॉमन निकाल दोगे तो कॉमन निकाल 3 sec 3x. तो यहां पे क्या बचा? tan 3x. यहां पे क्या बचा? sec 3x. ये पार्ट डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ इतना सा पार्ट आपका आंसर बचेगा. ओके बेटा, यू कैन कॉपी दिस. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Here you can see you have 1 plus sin x degree upon 1 minus sin x degree. So बेटा it is u divided by v. तो अपने को u divided by v का डेरिवेशन का रूल लगेगा बेटा. So first in solution you will write let y is equals to given question. Differentiating with respect to x will give me dy by dx equal to differentiation of entire term, that is 1 plus sin x upon 1 minus sin x upon dx. Now बेटा u upon v का रूल क्या होता है? v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. Okay, denominator derivative of numerator minus numerator derivative of denominator upon denominator square. So बेटा ये पार्ट कैसे हो जाएगा? यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ a प्लस b का फॉर्मेट करो. डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पार्ट लिखोगे, ये ऐसे आएगा. here also derivative of first part minus derivative of second part हो जाएगा बेटा. it will remain as it is. 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 0. sin x का क्या होता है? cos x माइनस ये पार्ट ऐसे हो जाएगा बेटा. 1 में क्या होता है? 0. sin x का क्या होता है बेटा? cos x. तो ये माइनस cos x लिखे, ये हमें माइनस. नाउ मल्टीप्लाई करो, cos x बन जाएगा cos x, cos x minus sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा. तो cos x बन जाएगा cos x, cos x sin x. तो बेटा माइनस cos x sin x प्लस cos x sin x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos x cos x. What is cos x cos x? 2 cos x. बेटा this is your final answer, but in your textbook you have to give this answer. How we convert this 2 into pi upon 90 बेटा? Because pi is 180. So 180 divided by 90 कितना होता है? 2. उसको कन्वर्ट कर दिया ऐसे. ओके, समझ में बेटा? u upon v का रूल लगाना है और फिर नॉर्मल सॉल्यूशन है आपका. You can copy this. Now students, next question is question number 8. Here you can see you can have cot of log x upon 2 minus log of cot x upon 2. Now please pay attention बेटा. Solution बिल्कुल वैसे ही होगा. Let y is equal to given question. Differentiating with respect to x will give me dy by dx into dy by dx equal to differentiation of entire term upon dx.
नाउ बेटा इट इज a माइनस b फॉर्मेट। सो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन ऑफ a माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ b पार्ट लिखोगे। नाउ एज यू कैन सी फर्स्ट फंक्शन इज cot, तो cot x का क्या होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो माइनस कोसेक स्क्वायर ये पूरा ब्रैकेट x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट लिख दिया बेटा विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस बेटा यहां पे कौन सा फंक्शन यूज है पहले log, तो log x का क्या होता है बेटा 1 अपॉन x, ओके log x का क्या होगा बेटा 1 अपॉन x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, मतलब ब्रैकेट जो हम यूज करते हैं। It will remain as it is, this parts also remain as it is। now बेटा as you can see here यहाँ पे 1 upon 2 कॉमन है, कांस्टेंट पार्ट मतलब कोएफिशिएंट है, तो उसको बाहर ले लो, तो 1 upon 2 मैंने बाहर ले लिया, बचा कौन फंक्शन log x। log x का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन 1 upon x, तो 1 upon x लिख दिया हमने माइनस बेटा अपॉन अपॉन मल्टीप्लाई होता है तो अपॉन का अपॉन का 2 ऊपर हो जाएगा, बचेगा क्या 1 upon cot। व्हाट इज 1 upon cot tan, तो बन गया tan x, समझ में बेटा 2 ऊपर चला गया एंड 1 upon cot क्या होता है tan x, तो tan x लिख दिया बेटा। हियर आल्सो 1 upon 2 कोएफिशिएंट है, बाहर ले लोगे और डिफरेंशिएशन किसका लोगे cot x का, cot x क्या होता है बेटा माइनस कोसेक स्क्वायर x। लास्ट में बेटा आप इसको एक जैसा कर दो, मतलब माइनस कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन 2 into x 2x माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल tan x into cosec square x, ये आपका फाइनल आंसर। ओके यू कैन कॉपी दिस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है e⁻²x माइनस e⁻²x अपॉन e⁻²x प्लस e⁻²x, मींस आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में दिया है u अपॉन v। तो सबसे पहले हम उनको सिंपलीफाई करेंगे। सो इन सॉल्यूशन यू विल राइट लेट y इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन, बेटा a⁻n को 1 अपॉन a⁻m लिख सकते हो, मतलब 1 अपॉन लिख के उसको पॉजिटिव पावर बना सकते हो, तो इधर a⁻²x को मैंने 1 अपॉन के e पॉजिटिव 2x लिखा है, ऊपर और नीचे दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों करके ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो e⁻²x into e⁻²x क्या होगा e⁻4x माइनस 1 अपॉन e⁻²x, इधर भी मल्टीप्लाई किया e⁻4x प्लस 1 अपॉन e⁻²x, दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल और ये पार्ट आपको आ जाएगा। सो आपने इस पार्ट को सिंपलीफाई कर लिया e⁻4x माइनस 1 अपॉन e⁻4x प्लस 1। अब कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे सर क्यों सिंपलीफाई किया, डायरेक्टली u अपॉन v का रूट क्यों लगाया, बेटा यहां पे आप देखो यहाँ पे 4 टाइम्स e है तो 4 टाइम्स फंक्शन बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम्स e है खाली और 2 टाइम्स क्या है 1, तो क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ 1 डायरेक्टली 0 हो जाएगा, दैट विल बी बेनिफिशियल, तो इसको चेंज करना है। इसके बाद क्या है बेटा ना y इज इक्वल टू ये पार्ट जो नया आ गया है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव मी डिफरेंशिएशन dy by dx is equal to differentiation of this new term upon dx। बेटा u upon v का रूल लगाओ, v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square। फिर से बोलो बेटा v into derivative of u upon minus u into derivative of v upon v square। ओके बेटा ये ब्रैकेट ऐसे लिखोगे, यहां पे डेरिवेशन है तो डेरिवेटिव ऑफ 2 टर्म्स a माइनस b मतलब डेरिवेटिव ऑफ a माइनस डेरिवेटिव ऑफ b, ओके माइनस सेम ब्रैकेट ऐसे लिखोगे बेटा और यहां पे भी आप क्या करोगे बेटा डेरिवेटिव ऑफ a प्लस डेरिवेटिव ऑफ b सेपरेट कर दोगे डिवाइडेड बाय दिस टर्म। नाउ बेटा ये ब्रैकेट ऐसे लिखोगे e⁻4x का क्या होता है बेटा डेरिवेशन e⁻4x सेम होता है e⁻4x का e⁻4x होगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 0, ठीक है डेरिवेटिव ऑफ 1 का तो 0 तो लिख के फायदा नहीं है। नेक्स्ट लाइन में ये पार्ट ऐसे लिखो, ये पार्ट क्या होगा बेटा बताओ बताओ बच्चों लोग ये पार्ट क्या होगा व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4x, डेरिवेटिव ऑफ 4x का होता है 4, तो 4 into e⁻4x into दिस ब्रैकेट, मतलब इस पार्ट में सिंपलीफाई करके बता रहा हूं, ओके 4 into e⁻4x और ये ब्रैकेट लिखोगे माइनस 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 ऐसे आ गया, ये पार्ट ऐसे होता वापस e⁻4x क्या होगा e⁻4
4x into डेरिवेटिव ऑफ 4x प्लस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 का बेटा 0, वो भी लिख के फायदा नहीं है, ये पार्ट भी ऐसे आप सिंपलीफाई करोगे, डिवाइड बाय दिस टर्म। नाउ बेटा एज यू कैन सी 4 into e raised to 4x इधर भी है और इधर भी है, मतलब आप बोल सकते हो यहां पे भी है और यहां पे भी, तो आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो क्या बचा बेटा e raised to 4x plus 1 माइनस e raised to 4x plus 1, e raised to 4x प्लस माइनस से कैंसिल होगा, 1 प्लस 1 कितना होगा 2, 2 into मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा 8, तो आगे आपका आंसर 8 into e raised to 4x अपॉन डिनोमिनेटर। ओके बेटा, सो इस क्वेश्चन में क्या हमने देखा कि हमने y को थोड़ा सिंपलीफाई किया, हाँ, फोर फंक्शंस को हमने टू फंक्शंस में कन्वर्ट किया, उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन करके u अपॉन v का रूल लगाया और फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करते हुए डेरिवेटिव निकालते निकालते अपना आंसर आ गया। ओके, यू कैन कॉपी दिस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। बेटा एज यू कैन सी बेटा व्हाट इज हियर, it is e raised to x plus 1 upon e raised to x minus 1. So beta start कैसे करेंगे, in solution let y is equal to given question, differentiating with respect to x will give me dy by dx equal to differentiation of the given question with respect to dx. Now beta u upon v का रूल लगाओगे, as you can see it is dividing, so v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square, जो फॉर्मूला पिछले 3 क्वेश्चन हम लोग यूज कर रहे हैं वही फॉर्मूला यूज करेंगे। नाउ इफ इट विल कम एज इट इज, हियर टू टर्म्स a plus b का फॉर्मेट है, so differentiation of a plus differentiation of b माइनस ये ब्रैकेट ऐसे लिखोगे बेटा, अगेन a minus b का फॉर्मेट है, differentiation of a minus differentiation of b अपॉन v स्क्वायर, मतलब जो अपना ब्रैकेट है उसका स्क्वायर, इट विल रिमेन एज इट इज। नाउ e रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज़ टू x का, e रेज़ टू x का क्या होता है, e रेज़ टू x, सो e रेज़ टू 2 e रेज़ टू रूट x का क्या होगा, e रेज़ टू रूट x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, सेम हियर e रेज़ टू रूट x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, इधर प्लस 1 का इधर माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0 0। ओके बेटा, नाउ प्लीज पे अटेंशन, e raised to root x minus 1 ऐसे होगा, e raised to root x, differentiation of root x क्या होता है, what is differentiation of root x, 1 upon 2 root x, so it is 1 upon 2 root x, same यहाँ पे 1 upon 2 root x। now as you can see this part is same, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे a raised to root x upon 2 root x, कॉमन लिया, ब्रैकेट में this minus this ब्रैकेट हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे बेटा e raised to root x और e raised to root x कैंसिल होगा, -1 और वो भी -1 हो जाएगा, सो -1 क्या हो जाएगा -2 e raised to root x upon this part, 2 will get cancelled and your answer will be there। ओके बेटा, तो क्या किया हमने, कुछ खास नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमने आपस u into v का रूल लगाया, फिर नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो करते आए हैं वो कर दिया, अपना आंसर मिल गया। ओके बेटा, यू कैन कॉपी दिस। So students, next question is question number 12. Here you can say beta, it is log of tan cube x into sin 4x into x square plus 7 the whole square. Now please pay attention beta, this is very difficult question, so you have to pay more attention. Now beta, suppose initially you will write that let y is equals to given question, differentiating with respect to x will give me dy by dx is equal to differentiation of this entire term upon dx. The important thing is your first function is very simple, that is log x. What is log x beta? 1 upon x. So it is 1 upon entire bracket 1 2 3. But the problem is beta, now here differentiation of bracket, okay, differentiation bracket will have a b c, that means a into b into c. So beta, what will we use, pay attention, we have formula for u into v, means जब अपने को दो चीजों मल्टीप्लाई है तब हम लोग u into v का रूल लगा सकते हैं, but here three things which are multiplied with each other, so what I have done beta,
बेटा, I suppose this is as a u and this part is a v. Okay, means this is u and this is v. Okay, so it becomes v into derivative of u plus u into derivative of v. Okay beta, what is mean by this? This means this part will become as it is. Now this will also come as it is. Here again beta, you have u into v का रूल. That's what I was telling you. यहाँ पे आपको दो बार u into v का रूल लगाना है. Okay, first this is u and second this is v. Now in this u only you have this is u and this is v. So you will write v into derivative of u plus u into derivative of v plus this part. So this will remain as it is. Now what is differentiation of x square plus 7 the whole square? It is x raised to 1 beta. So you will write 7 into bracket 7 minus 1, it is 6 into differentiation of x part. This part remain as it is. This is also remain as it is. Now beta, here you can see sin 4x, sin raised to 4x, sin raised to 4 as it is. Now it is x raised to n का formula beta. What is x raised to n? 3x square. So it is 3 tan square x into, I had directly used differentiation of tan x. What is differentiation of tan x beta? 6 square x. Pay attention, मैंने डायरेक्टली लिखा है, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हो. Plus it is tan cube x remain as it is. Here sin raised to 4x. So इसका derivation क्या होगा? 4 sin 4 minus 1 कितना बेटा? 3. तो 4 sin 3x into derivation of sin. What is derivation of sin? It is cos x. So you write cos x. Plus this part remain as it is into this part. Plus what is differentiation of x square? It is 2x and differentiation of 7 का जो बेटा 0. लिख के फायदा नहीं है. तो ये पार्ट हम ऐसे लिखेंगे. Now please pay attention बेटा, यहां तक आना आपका फर्स्ट पार्ट है एग्जाम में. If you come to this part, this means you have complete differentiation part. Now we have used simple calculation. Please pay attention. This has to be multiplied this part and this part. Means this is plus, इधर a और b दोनों में ये पार्ट मल्टीप्लाई होगा. ब्रैकेट के बाहर ये भी है. So what I had done, I had multiplied this also into this part and this part. So what is my this? What I will write? This a and this part numerator upon this denominator जो यहाँ पे नीचे है लिखा है. ओके बेटा, मीन्स पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, पहले इस पार्ट का इसमें मल्टीप्लाई किया अपॉन ये वाला पार्ट लिखा है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया बेटा प्लस के बाद वाले से. ओके, और फिर नीचे डिनोमिनेटर ये लिखा है. ओके बेटा, लास्ट अब इसका तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये दूसरा टर्म है, तो उसके अपॉन दैट ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया बेटा. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव मल्टीप्लाइड this part x square plus 7 is to 7 into these two, and then this is multiplied with both of them, and for this I have multiplied this denominator directly. So I came to this 3 portion. So I will use this 3 beta. Here you can see x square plus 7 is to 7 will get cancelled, this part will get cancelled, this part will get cancelled. I will have 10 square और 10 cube x, तो नीचे 10x बच जाएगा बेटा, ऊपर 6 स्क्वायर बचेगा, तो ये आपका आ जाएगा ना. इसका कैसे सॉल्व करोगे बेटा? व्हाट इज 6 स्क्वायर x? इट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर, और व्हाट इज 10? इट इज sin अपॉन cos. डिनोमिनेटर में तो रिवर्स लिखोगे आप, तो cos अपॉन sin बच जाएगा. cos प्लस कैंसिल होगा बेटा, अपने पास क्या आएगा? sin x cos x. तो फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इट बिकम 6 into 2 sin का cos थीटा मींस sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा का इन्वर्स करोगे तो अपने को cosec 2 थीटा आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट बेटा, दिस हियर आल्सो यू कैन सी दैट tan cube x cancel, this part will get cancelled. sin 3 है ऊपर, नीचे sin 4 है बेटा, तो sin 3 और 4 कैंसिल होगा, एक sin बचेगा नीचे बेटा और एक cos ऊपर है, फिर इस cos अपॉन sin क्या होता है बेटा? cot. तो इसका लास्ट में फाइनल cot x हो जाएगा. प्लस हियर आल्सो this part will get cancelled,
this part will get cancelled. So this is 6 times here and denominator 7 times है, तो नीचे एक पार्ट बचेगा x स्क्वायर प्लस 7, इन न्यूमरेटर 7 का 14x, तो फाइनली आपको 14x मिल जाएगा। ओके बेटा, so this is very lengthy questions, so you have to pay attention. Once again revise this. You have the question. First you will assume y is equal to given question. Differentiating with respect to x will give me differentiation of entire term with respect to x. First हम लोग log का derivation निकाल देंगे, log का differentiation लिखेंगे, it is 1 upon x into differentiation of x हो जाएगा बेटा। Now here it is a into b into c, तो पहले इसको मैंने a माना है और इसको b माना, मतलब इस पार्ट को मैंने u मान लिया है, इस पार्ट को मैंने u माना है और फिर इस पार्ट को मैंने v माना है। तो u into v का रूल लगाया, v into derivative of u plus u into derivative of v, यहाँ पे वापस u into v का रूल लगेगा बेटा, वापस u into v का रूल लगाया अंदर में। उसके बाद सॉल्व करते करते ये लाइन तक आई, फोर्थ लाइन तक लोग आ गए। उसके बाद बेटा क्या किया मैंने, ये x स्क्वायर प्लस 7 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, मतलब इस पार्ट में इस टर्म और इस टर्म दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ ही साथ मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे 1 और डिनोमिनेटर उसका भी 1 2 3 तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल करते जाओ, आपको ये पार्ट मिलेगा, ये दोनों डायरेक्टली आपको आ जाएगा, cos अपॉन sin डायरेक्टली cot हो जाएगा बेटा आपका। दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ इस वाले में थोड़ा दिक्कत होगा आपको, व्हाट इज sec स्क्वायर थीटा बेटा, इट इज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, व्हाट इज tan थीटा, cos अपॉन sin का हो जाएगा, फिर इनवर्स है वो cos cos कैंसिल, नीचे sin x cos x बचेगा, तो इस फार्मूला 2 sin x cos x क्या फार्मूला कहता है, sin 2 थीटा, तो इसके लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये बन गया sin 2 थीटा, इनवर्स करोगे तो cos 2 थीटा हो जाएगा, cosec 2 थीटा होगा, तो 3 टू 6 cosec 2 थीटा हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। सो बेटा प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन 2 to 3 times. Okay, you can copy this. So students, next question is question number 13. Beta, you can see that log of under root 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x. बेटा log को थोड़ा साइड में रखो। अगर आपने ये चीज ध्यान से देखा होगा तो आपको 11th 10th स्टैंडर्ड इनका ट्रिग्नोमेट्री याद आया होगा बेटा। क्या करते थे हम वहां पे, जो हम लोग यहाँ पे किए बेटा, हम लोग रेशनलाइजेशन करते थे। सो अंडर रूट 1 minus cos 3x upon 1 plus cos 3x को कैसे सॉल्व किया बेटा, पहले इतने से पार्ट को मैंने सॉल्व किया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन किया है। तो क्या किया बेटा हम लोगों ने, ध्यान दो बेटा, हमने 1 minus cos 3x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, दैट इज रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ओके, तो मल्टीप्लाई किया, तो दिस a into a क्या होता है, a स्क्वायर, सेम चीज है तो स्क्वायर हो जाएगा। हियर इट इज 1 plus cos 3x 1 minus cos 3x, क्या हो जाएगा बेटा, a plus b minus b, a square minus b square, तो 1 minus cos square theta, what is 1 minus cos square theta बेटा, what is 1 minus cos square theta, sin square theta, sin square theta, और ये भी स्क्वायर, तो स्क्वायर में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 minus cos 3x upon sin 3x, स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दिया। ना बेटा स्प्लिट कर दिया इसको, दिस पार्ट माइनस दिस पार्ट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो व्हाट इज 1 अपॉन sin cosec, तो cosec 3x हो गया, व्हाट इज cos अपॉन sin cot, तो इस पार्ट को मैंने सिंप्लीफिकेशन में ये लिख दिया है। सो लेट y इज इक्वल टू log ऑफ गिवन क्वेश्चन। नाउ ये जो ब्रैकेट है उसका मतलब ये हमने सॉल्व करके दिखाया है, तो उसके लिए हम लोग ये लिख देंगे। सो नया क्वेश्चन क्या बन गया, y इज इक्वल टू log ऑफ दिस पार्ट, differentiating with respect to x gives me dy by dx into differentiation of this part upon dx। तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा बेटा आपका, log। so what is log, what is differentiation of log, 1 upon x, तो differentiation of log x will be 1 upon x into differentiation of x। तो ये पार्ट ऐसे आएगा बेटा, यहाँ पे a minus b दो टर्म है, तो differentiation of first term minus differentiation of second term, ये ऐसे लिखोगे। what is differentiation of cosec theta minus cos theta into cot theta, तो बेटा minus cos theta into cot theta लिखा है into differentiation of theta, मतलब differentiation of x plus माइनस है बेटा, ये माइनस है, what is differentiation of cot 3x,
माइनस कोसेक स्क्वायर 3x। सो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस बन जाएगा बेटा, कोसेक स्क्वायर 3x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x। ओके बेटा, सो इसको ये तो ऐसे आएगा, इसको आप सॉल्व करके क्या बन जाएगा, माइनस 3 कोसेक 3x इनटू कॉट 3x इनटू 3, तो 3 आगे लिख दिया, इसमें ये पार्ट कर दिया। नाउ बेटा यू कैन सी हियर, यहाँ पे 3 कोसेक 3 थीटा, 3 कोसेक 3 थीटा कॉमन है, तो उसको कॉमन लिया बाहर, तो ब्रैकेट में बचा प्लस वाला आगे लिख रहा हूं, सो प्लस वाला जो टर्म है वो आगे लिखेंगे, कोसेक 3x माइनस कॉट 3x। ओके, ये पार्ट सेम है, कैंसिल, ये पार्ट बचा, और ये आपका फाइनल आंसर है 3 इनटू कोसेक 3x। समझ में आएगा बेटा? सो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, दिस पार्ट हमने इसको सॉल्व करके ये पार्ट लेके आया और फिर इसको नॉर्मल डेरिवेटिव सॉल्व किया। ओके बेटा, यू कैन कॉपी दिस। Let's start with the next question. Next question is question number 14. This is also similar to question number 13 बेटा, जहां पे पहले इस पार्ट का आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन, और फिर जो आंसर आएगा इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने क्या लिखा बेटा, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 5x अपॉन 2 1 माइनस कॉस 5x अपॉन 2। रैशनलाइजेशन क्या, डिनोमिनेटर का तो माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर सेम टर्म है तो बेटा a इंटू a स्क्वायर हो गया, नीचे 1 माइनस cos 5x अपॉन 2 1 प्लस cos 5x अपॉन 2 क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस cos स्क्वायर 5x अपॉन 2। अगेन व्हाट इज 1 माइनस cos थीटा बेटा, sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा आ गया बेटा। नाउ दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 1 प्लस cos 5x अपॉन 2, नीचे sin 5x अपॉन 2। स्प्लिट कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो 1 अपॉन sin क्या हो गया बेटा, कोसेक, cos अपॉन sin क्या हो गया बेटा, cot। सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, खाली यहां पे x अलग है। ओके बेटा, एंड सिंबल b। नाउ प्लीज पे अटेंशन, व्हाट वी विल यूज, नाउ लेट y इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन, लॉग दिस पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया बेटा, ये पार्ट हमने सॉल्व किया है, और क्या है उसका आंसर, ये cos 5x अपॉन 2 प्लस cot 5x अपॉन 2, तो वो लिखा बेटा हमने, रिप्लेस कर दिया उसको। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x will give me dy by dx equal to differentiation of this entire term upon dx. Now beta, it is first function is log, so what will be the differentiation of log, it is 1 upon x, so log x का क्या होता है बेटा, 1 upon x into differentiation of x, so 1 up log of bracket is 1 upon bracket into differentiation of the bracket, same terms। ये पार्ट ऐसे लिखोगे बेटा। नाउ हियर a प्लस b दो टर्म्स है, तो इंडिविजुअली दोनों का क्या करोगे बेटा, डिफरेंशिएशन लगाओगे। ये पार्ट ऐसे लिखा बेटा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक थीटा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x, बोल दो माइनस कोसेक x इनटू cot x, तो माइनस कोसेक x इनटू cot x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x लिखा बेटा, x क्या है 5x अपॉन 2 उसका, तो बेटा ये पार्ट तो ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x अपॉन 2 क्या होगा, व्हाट इज 5x अपॉन 2 बेटा, इफ यू कैन सी हियर 5x अपॉन 2 में 5.2 क्या है, कोएफिशिएंट, तो 5.2 में पहले लिख दिया। हियर बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होगा बेटा, वेरी गुड, कोसेक स्क्वायर थीटा, सो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा बेटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x अपॉन 2, तो दोनों स्टेटमेंट में 5 अपॉन 2 5 लिख दिया आगे में। ओके बेटा, आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया है। ये पार्ट ऐसे होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x अपॉन 2 क्या होता है, 5.2 कोएफिशिएंट यहां पे भी, यहां पे भी, तो क्या दिखा बेटा देखो, इतना पार्ट कॉमन है दोनों में, जो कॉमन है बाहर लिख दिया, माइनस 5/2 कोसेक 5x अपॉन 2, तो यहां पे ये पार्ट बचा और यहां पे ये पार्ट बचा जो कि सेम है, बाद में दोनों पार्ट को कैंसिल कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, यू कैन कॉपी दिस। Please pay attention beta, this is question number 14 which is very similar to question number 13. Okay, now you can copy. So students, similar to question number 13 and 14, here you have question number 15. Okay beta, now here also you have log of under 1 minus sin x upon 1 plus sin x। तो पहले क्या किया, इस पार्ट का रैशनलाइजेशन किया, मींस
1 प्लस साइन एक्स था तो हमने 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया बेटा। सो ऊपर में a इंटू ए सेम टर्म है तो सेम टर्म का होल स्क्वायर होगा, नीचे a प्लस बी और a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा बेटा। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा बेटा, और sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बेटा? cos स्क्वायर थीटा। तो ये भी स्क्वायर फॉर्मेट में, ये भी स्क्वायर फॉर्मेट में, और ये स्क्वायर रूट कैंसिल। क्या बचेगा? 1 माइनस sin x अपॉन cos x। स्प्लिट कर दिया 1 अपॉन cos x माइनस sin अपॉन cos x। व्हाट इज 1 अपॉन cos x बेटा? sec x। व्हाट इज sin अपॉन cos x बेटा? tan x। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन ये आ गया। फिर सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चंस, नाउ लेट y इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है। Therefore y is equal to log of this part is converted into this sec x minus tan x। तो इसको कन्वर्ट कर दिया। Differentiating with respect to x, dy by dx is equal to differentiation of the term log of sec x minus tan x upon dx। तो पहला कौन सा फंक्शन है बेटा? log। तो log of x क्या होगा? 1 upon x into differentiation of x, this will remain as it is। Here you have two terms. Now differentiation of sec x minus differentiation of tan x will give me next line. So this will remain as it is. Now what is differentiation of sec x? Abeta, what is differentiation of sec x? It is sec x into tan x. And what is differentiation of minus tan x? It is sec square x. Okay. So what is common here now? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बेटा? व्हाट इज कॉमन हियर? sec x। तो sec x कॉमन लिया तो बचेगा tan x minus sec x। नाउ बोथ ऑफ द ब्रैकेट्स आर सेम बट विद ऑपोजिट साइन, सो मैंने इससे कट कर दिया और sec x को नेगेटिव ले लिया। ओके बेटा, नेगेटिव से इनका सिंबल चेंज हो जाएगा। ओके, सो दे विल बिकम सेम एंड विल गेट कैंसिल। सो आपका फाइनल आंसर क्या है बेटा? माइनस sec x। ओके बेटा, यू कैन कॉपी दिस, प्लीज कॉपी। So students, we are going to next question. Next question is question number 16. Beta, as you can see, this is log of bracket 4 raised to 2x small bracket x square plus 5 upon under root 2x cube minus 4 raised to 3 upon 2 bracket close. Lengthy question है बेटा। Okay, so कैसे स्टार्ट करेंगे? बट वेरी सिंपल। अगर आप सिस्टमेटिक वे से जाओगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू द बेसिक्स। नाउ सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? एज यूजुअल लेट y इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी विल गेट y क्या बेटा? dy by dx equal to differentiation of entire term upon dx। Okay beta, now please pay attention। what is differentiation of log? differentiation of log x क्या होता है बेटा? 1 upon x। देखो जो ब्रैकेट था वो सेम लिखा है यहाँ पे, into differentiation of x। तो बेटा ये टर्म तो ऐसे ही उतर जाएगा नीचे। here it is u into v का रूल, u into v का रूल। सो बेटा आपको वो रूल लगाना पड़ेगा। व्हाट इज u into v का रूल? ठीक है, मैंने थोड़ा उल्टा लिखा, आप चलो आप ऐसे लिख सकते हो। इट इज v into डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u into डेरिवेटिव ऑफ v। प्लस तो आगे पीछे करके लिख सकते हो। ठीक है, v into डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u into डेरिवेटिव ऑफ v। ये स्टेप ऐसे कैसे लिखा है बेटा? नाउ बेटा प्लीज पे अटेंशन, ये टर्म भी ऐसे कैसे लिखा है? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a raised to x? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ a raised to x? a raised to x log a into डेरिवेटिव ऑफ x। ओके बेटा, सो मैंने क्या किया बेटा? नाउ प्लीज पे अटेंशन, आपको ये टर्म दिख रहा है, ये टर्म, इसका बेटा प्लस के ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो प्लस के पहले वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई किया, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, और प्लस के बाद जो यहाँ पे टर्म उसमें मैंने यहाँ लिखा है। यू कैन सी दैट ये पार्ट सेम है, दोनों जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको इधर और इधर
इस पार्ट को ए और प्लस बी दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो यहां पे भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है। तो ये पार्ट यहां पे ऐसे होगा बेटा, ये पार्ट को ऐसे लिखोगे, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव लगाओगे बेटा, इट इज a रेज़ टू x log a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस के पहले वाला देखते बेटा। नाउ प्लीज इफ यू पे अटेंशन, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट विल गेट कैंसल्ड, 4:2x 4:2x विल गेट कैंसल्ड। यहां पे क्या बचेगा बच्चे लोग, log 4। ओके, क्या बचेगा बेटा, log 4 और डेरिवेटिव 2x क्या होता है 2, तो 2 log 4। समझ में आया बच्चे लोगों ने क्या किया है, ठीक है, समझ में आया बच्चे सबको, यस और नो? ओके, सो ये पार्ट सेम है, कैंसिल होगा, ये पार्ट सेम है, कैंसिल होगा, बचेगा log 4 और इधर से 2 log 4 आ गया, प्लस का प्लस दिया बेटा। ना इफ यू पे अटेंशन ओवर हियर, ठीक है, यहां पे वापस बेटा u अपॉन v का फॉर्मूला लगा है। व्हाट इज u अपॉन v, पहले 4:2x लिखा है बेटा, उसके बाद u अपॉन v का फॉर्मूला, व्हाट इज u अपॉन v, नहीं सबसे पहले x रेज़ टू n का फॉर्मूला यूज किया बेटा। व्हाट इज x रेज़ टू n, n into x raised to n minus 1, 3/2 minus 1 लिखा गया बेटा मैंने, into derivative of x, okay बेटा, into derivative of x। now please pay attention, what happens now, 4:2x 4:2x cancel हो जाएगा बेटा, 4:2x cancel। if you pay attention तो क्या बचा 3/2, तो 3/2 मैंने आगे लिखा है। okay, now if you pay attention, this bracket and this bracket is same, okay, this bracket x square plus 5 upon under root यहाँ पे भी सेम है बेटा, बट इसका पावर क्या है 3/2 minus 1 और इसका पावर क्या है 3/2। तो आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा a raised to m डिवाइड बाय a raised to n, क्या होता है बेटा a raised to m minus n, ये फॉर्मूला याद है बेटा आपको। सो हमने ये फॉर्मूला यूज किया a raised to m minus n, तो 3/2 कैंसिल होगा, -1 बच जाएगा बेटा, -1 का मतलब क्या होता है इनवर्स। नेक्स्ट लाइन में इसको मैंने इनवर्स कर दिया, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर लिख दिया है और जो न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर कर दिया बेटा। ओके, बट ये बात हो बेटा ना, हम लोग क्या करेंगे बेटा, इधर u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे। व्हाट इज u अपॉन v का फॉर्मूला बेटा, v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके बेटा, v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square। तो बेटा ये पढ़ा गया। अब ये जो सॉल्यूशन है इसको भी यहां और यहां मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करते हैं बेटा। तो 3/2 लिखा बेटा, ये पार्ट क्या हो जाएगा मैंने आपको बताया इनवर्स हो जाएगा अपॉन दिस, तो लिखा है यहां पे, ठीक है। सो f इफ यू कैन सी सेम चीज यहां पे रूट में 2 बार है, अगर मल्टीप्लाई करो तो इसका स्क्वायर होगा, तो ये पार्ट ये जो स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, ओके बेटा, ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है वो ये कैंसिल होगा। यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 है बेटा, तो x स्क्वायर का क्या होगा 2x और 5 का क्या होगा 0, यहाँ पे 2x बचा बेटा, ठीक है। तो ये पार्ट लास्ट में क्या बचेगा बच्चों लोग, दिस 2 एंड दिस पार्ट विल कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा यहाँ पे 3x अपॉन ये x स्क्वायर प्लस 5, तो ये आपका 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 हो गया बेटा। ये पार्ट सॉल्व हो गया, फिर से बोल देगा बेटा क्या किया है, इसको सॉल्व किया, माइनस वाला है तो रिवर्स कर दिया, ब्रैकेट में से 1 2 3 पार्ट बाहर निकाला, ओके, स्प्लिट करके बाहर ले लिया, तो ये पार्ट आएगा बेटा, दिस 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये पार्ट आएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 into x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5। वापस ये पार्ट यहां पे आ गया। नेक्स्ट बेटा, अब ये पार्ट माइनस वाले में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस के बाद में भी, तो ये पूरा पार्ट यहां पे लिखा, देखो 3/2 इनटू इसका इनवर्स लिख दिया मैंने, इनटू दिस पार्ट मींस बेटा x स्क्वायर प्लस 5 का x स्क्वायर प्लस 5 होगा। व्हाट इज अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। ओके बेटा, सो बेटा इफ यू सी दिस x स्क्वायर प्लस 5 x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो बचेगा क्या 3/2, इसका स्क्वायर कर दोगे तो बचेगा आपको 2x3 - 4, 3/2 बचेगा, यहाँ पे 1/2 बचेगा,
ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और वो भी एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो खाली आपको बचेगा 2x क्यूब माइनस 4। और ये पार्ट को सॉल्व करोगे क्या, 2 का 2 होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 2 2 कैंसिल, लास्ट में आपके पास क्या बचेगा 3 3 जा 9x स्क्वायर अपॉन नीचे 1 2 बचेगा, 1 2 कैंसिल हो गया, सिंगल 2 2 कैंसिल हो गया, 1 2 बचा है। ओके, नाउ इट इज सिंगल 2 into this part. Okay, so by this we completed this part. Okay students, now you can, so by this beta we have completed question number 16. You can copy this and experiment with these two and practice this question 2 to 3 times. Okay, you can copy this. So students, we are going to question number 17 now. Beta question number 17 is similar to question number 16. So अगर आपको question number 16 समझ में आया है, the format in which we have solved question number 16, so question number 17 भी आपको समझ में आएगा. Okay, but if you do not understand the question number 16, pay attention over here also. You will get better understanding for both the questions. Now students, in question number 17 also you have log of some given point of view. Okay, so in solution what we will start beta, let y is equal to given question. Okay, differentiating with respect to x will give me y का क्या होगा बेटा, dy by dx is equal to differentiation of entire question. Okay beta, now what is your first function, log, तो log of x क्या होगा बेटा 1 upon x. Okay बेटा, log of x क्या होगा बेटा 1 upon x, सेम टर्म यहां पे लिखना है मेरे को. नाउ इन नेक्स्ट लाइन अपॉन क्या होगा बेटा मल्टीप्लाई, सो ये नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो दिस पार्ट कम अहेड ऊपर, समझे बेटा. सो क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, तो ये राइट आपको समझा बेटा. हियर बी x, नाउ बेटा हियर यू कैन सी इट इज a into b upon c फॉर्मेट, मतलब दो चीजों को मल्टीप्लाई हुआ और एक से डिवाइड किया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज u अपॉन v का फॉर्मूला. ओके, तो u अपॉन v का फॉर्मूला क्या होगा, v into डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u into डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. प्लीज पे अटेंशन, क्या फॉर्मूला, v into डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u into डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. लिख दिया फॉर्मूला बेटा. आफ्टर इट व्हाट विल हैपेंस बेटा, यू कैन सी हियर, यहां पे क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x वन टाइम है, यहां पे क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस 6x टू टाइम्स है, स्क्वायर मींस टू टाइम्स, तो इससे इसका स्क्वायर कैंसिल कर दोगे तो सिर्फ एक बार बचेगा. इतना समझ में बेटा. और मैंने क्या किया बेटा, नाउ प्लीज पे अटेंशन, समझ, ये जो टर्म है ये टर्म है, ये टर्म इसका मल्टीप्लाई कर दे दोनों जगह पे, माइनस है ना माइनस, तो दो टर्म है, माइनस के पहले का एक टर्म, माइनस के बाद का एक टर्म, तो दोनों के इससे भी डिवाइड कर दिया. तो आपका क्या होगा बेटा, दिस पार्ट, सपोज दिस इज ये जो a है आपका, दिस अपॉन ये आएगा और इसका एक सिंगल आएगा, दो है लेकिन एक कैंसिल हो गया तो एक आएगा अपने पास. सो व्हाट विल बी बेटा, क्यूब रूट ऑफ 7 minus 6x. नाउ इनटू हियर यू कैन सी इट इज u into v का फॉर्मेट, u into v ऊपर रखना बेटा, u into v, तो हम यूज करेंगे. व्हाट इज u into v का फॉर्मूला, v into डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u into डेरिवेटिव ऑफ v, v into डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u into डेरिवेटिव ऑफ v. वो फॉर्मूला यहां पे लगा बेटा, अपन ये दो चीजें आएंगी, माइनस का माइनस लिखा बेटा, इस बार ये चीज होगा बेटा ये, और डिनोमिनेटर में दो चीजें होंगी, फर्स्ट इसका एक सिंगल वाला और ये जो बाहर है, तो देखो वो भी मैंने लिखा है सिंगल हो जाता है. ये बेटा you have differentiation of like e raised to x square, e raised to x square लिखा, ये टर्म सेम लिखा है, into differentiation of 7 minus 6x का क्यूब रूट, तो क्यूब रूट को मैं 1/3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता बेटा, लिख सकते हैं क्यूब रूट को 1/3. ओके, तो आई थिंक यहां तक आपको समझ में आया रहेगा बेटा क्या किया. उसका सिंपल सॉल्यूशन यू कैन सी, माइनस के पहले इतना बड़ा टर्म है, उसमें क्या किया बेटा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डिनोमिनेटर में सिर्फ इतना पार्ट बचेगा जो यहां मैंने लिखा है.
ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गए. हियर इट विल रिमेन एज इट इज. डिफरेंशिएशन ऑफ ex स्क्वायर क्या होता है बेटा? ex स्क्वायर e रेज़ टू x का exc होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर. अब ये प्लस है बेटा, प्लस तो स्प्लिट कर दिया डिनोमिनेटर को, तो वापस ये वाला टर्म, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, तो ये वाला टर्म इसके भी डिनोमिनेटर में आएगा और ये वाला टर्म इधर भी डिनोमिनेटर में आएगा. आप देख सकते हो उधर क्या e रेज़ टू x स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n का फार्मूला लगाएगा. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज़ टू n? n into x raised to n minus 1. n into x raised to n minus 1 दिख रहा है आप लोगों को? into differentiation of x माइनस, यहां पे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा खाली न्यूमरेटर में ये वाला पार्ट बचेगा और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट बचेगा. ये पूरा कैंसिल हो गया इतना. ओके, सो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to n? क्या होगा फॉर्मूला बेटा? n into n क्या है बेटा? 1/3. n यहां पे क्या बेटा? 1/3 n into x raised to n minus 1 into differentiation of x. तो ये लाइन आपको समझ में आना चाहिए बेटा. सबसे इंपॉर्टेंट ये दो लाइन है. एक बार ये हो गया तो आप देख सकते हो ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, ये पूरा चारों के टर्म्स कैंसिल हो गए. यहां पे क्या बचेगा? सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर बेटा? इट इज 2x. ये वाला पार्ट मिल गया प्लस प्लस. ना बेटा ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा. 3/2 आएगा आगे, तो 3/2 मैंने लिखा है बेटा. ना ये था कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसको थोड़ा साइड में रखो. डिफरेंशिएशन ऑफ 5 माइनस 4x का होगा. 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? 0 और माइनस 4x का क्या होगा? x का 1 तो -4. तो देखो बेटा मैंने -4 लिखा हुआ. उसके बाद मैंने वही लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था a raised to m upon a raised to n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? a raised to m minus n. तो दिस इज a raised to m upon a raised to n. क्या होगा? a raised to m minus n. this minus this लिखा मैंने बेटा आपको. यहाँ पे 3/2 कैंसिल हो, खाली -1 बचेगा. -1 का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी नंबर के ऊपर में माइनस होने का क्या लिखोगे? इसको 1/, लिखोगे. तो 1/, मैंने 5x लिख दिया बेटा. 2 2 सा कट गया, कितना है बेटा? 2 2 4, 2 बचेगा, 2 3 6, तो आ गया -6 ये टर्म. माइनस, तो माइनस देखो बेटा 1/3 लिखा हुआ बेटा आपके पास. नाउ हियर आल्सो 7 minus 6x नीचे भी है ऊपर भी है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे. तो 7 - 6x 1/3 - 1. इधर का पावर है बेटा 1/3, क्यूब रूट क्या है 1/3, तो वो भी माइनस हो जाएगा. इनटू इसका डिफरेंशिएशन निकालना है 7 - 6x का, तो 7 का क्या होगा 0, -6 का क्या होगा -6. मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा. इसमें भी 1/3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है. 7 - 6x रेज़ टू -1 होगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर बन जाएगा बेटा, और 3 2 6 तो 2 आएगा आपका आंसर. तो फाइनली यू विल गेट दिस आंसर. ओके स्टूडेंट्स, यू कैन कॉपी दिस. प्रैक्टिस do these questions 2 to 3 times. Okay, you will definitely understand. So students, next question is question number 18, which is similar to 16 and 17 beta. So 16 17 18 तीनों क्वेश्चन सेम है. Okay, so I think till now you have already understood the 16 and 17 questions, so it will be easier for question number 18. So beta, in question number 18 you have log of a raised to cos x upon x square minus 3 whole raised to cube log x. So beta, let y is equal to given question, differentiating with respect to x will give me dy upon dx is equals to differentiation of entire term with respect to dx. So इतना part of common. Now beta, what is first function? Log. तो log of x क्या होगा बेटा? 1/x. log of x क्या हो जाएगा बेटा? 1/x. Okay, so 1/x है. Now again similar to previous question, यहाँ पे a/b है, तो इसको इनवर्स कर दोगे तो ये वाला पार्ट न्यूमरेटर बन जाएगा. ओके बेटा, did you understand? Now here differentiation of x होगा. Now बेटा यहाँ पे कौन सा फॉर्मेट है? a/b into c. So पहले हम इसको u इसको v मानेंगे और u/v का फॉर्मेट लगाएंगे. So what is u/v? v into derivative of u minus u into derivative of v upon v square. ओके बेटा, समझा क्या फॉर्मूला है? v into derivative of u
minus u into derivative of v upon v square. Beta, if you see this is and these are the same functions, मतलब same format. तो यहाँ पे ये एक बार, यहाँ पे ये स्क्वायर है, मींस 2 टाइम्स है. ओके, तो अगर कट करें तो यहाँ पे नीचे की ओर एक बचेगा. प्लीज पढ़िए, नीचे की ओर एक बचेगा. ठीक है, अगर ये a है, ये a स्क्वायर है, तो कैंसिल हो तो यहाँ पे a बचेगा, मतलब ये टर्म बचेगा. नाउ यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या बचा? a raised to cos x. नाउ सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्या किया? ये माइनस का बेटा स्प्लिट कर दिया. ये माइनस के पहले का टर्म एक साथ लिखा, माइनस के बाद का टर्म एक साथ स्प्लिट करके लिखा है. सो माइनस के पहले यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर माइनस 3 का होल क्यूब log x और डिफरेंशिएशन ऑफ a cos x. ठीक है, वो क्या किया आपने बेटा? फॉर्मेट यूज किया है. तो ये चीज हम लोग लिखेंगे. ओके, तो यहाँ पे बचा क्या बेटा? यहाँ पे क्या बचा बेटा? अगर एक कैंसिल हो तो नीचे a raised to cos x बचा, तो a raised to cos x लिखा है. ये पार्ट यहाँ पे सेम आएगा, log x भी सेम आएगा. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ a raised to x का क्या होता है? डिफरेंशिएशन a raised to x log a. तो a raised to x log a into डिफरेंशिएशन ऑफ cos x. और ये एक जो बचा वो भी मैंने लिखा, सिर्फ माइनस करेंगे बेटा. ये टर्म है, ये टर्म यहाँ पे लिखा बेटा a raised to cos x, a raised to cos x. ना बेटा यहाँ पे b into c है, तो इसको u और v मान के u into v का रूल लगाएंगे. इट इज v into डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u into डेरिवेटिव ऑफ v. हाँ, v into डेरिवेटिव ऑफ u, u into डेरिवेटिव ऑफ v. ये फॉर्मेट लगाया है. डिनोमिनेटर में ये पार्ट और ये एक सिंगल लिखना है अपने को. इफ यू सी बेटा, दिस a raised to cos x, a raised to cos x कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे ये x स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कैंसिल होगा. log x भी कैंसिल होगा. तो ये ऊपर के इतना पार्ट, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा. क्या बचेगा? सिर्फ इतना बचेगा. तो इस log a, तो log a लिखा. और डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस sin x, तो माइनस sin x लिखा. तो ये अपना ऐसे लास्ट तक जाने वाला है. ओके, तो माइनस sin x log a आप लास्ट में यहाँ पे. उसके बाद बेटा क्या है? माइनस, तो माइनस लिखा. इफ यू सी बेटा a raised to cos x, a raised to cos x कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सिर्फ ये बचने वाला है. और यहाँ पे दो टर्म है, तो स्प्लिट कर दिया बेटा, दिस अपॉन डिनोमिनेटर एंड दिस अपॉन डिनोमिनेटर. यू कैन सी हियर. यहाँ पे log x का log x लिखा है. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x raised to n? व्हाट इज x raised to n? n into x raised to n minus 1. तो 3 into x raised to 3 minus 1 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा बेटा. प्लस ये पार्ट ऐसे आएगा बेटा. व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x? 1 upon x. तो 1 upon x नीचे एक एक्स्ट्रा लिखोगे और ये डिनोमिनेटर आपको आ जाएगा बेटा. तो ये पार्ट ऐसे यहां पे लिखा है. इफ यू पे अटेंशन बेटा, log x कैंसिल हो जाएगा. 3 बचेगा, तो मैंने 3 लिखा बच्चों. नाउ व्हाट इज x स्क्वायर माइनस 3? यहां पे न्यूमरेटर में 2 टाइम्स है और डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स है, तो नीचे साइड एक ज्यादा रहेगा, तो नीचे भी एक्स्ट्रा बच जाएगा. What is differentiation of x square minus 3? x square का 2x और 3 का 0, तो 2x लिखेंगे हम लोग. This will be 3 2 जा 6x upon this part. प्लस है तो प्लस प्लस लिखोगे आप बेटा. Now if you see x square minus 3 ऊपर भी 3 टाइम्स है, नीचे भी 3 टाइम्स है, कैंसिल हो जाएगा. डिनोमिनेटर में x and log x बचेगा, तो 1 upon x and log x आपका फाइनल आंसर. ओके बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 सिमिलर टाइप है. यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस 2 to 3 times so that you understand these questions very well. Okay बेटा, please copy this. So beta, next question is question number 19. There are two methods beta. This is method number 1 and this is simply method number 2. तो पहले मैं method number 1 बता देता बेटा. It is simple. Y is equal to given question. Given आपको क्वेश्चन है 25 raised to log to the base 5 sec x minus 16 raised to log to the base 4 tan x. तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करोगे बेटा dy by dx. डिफरेंशिएट क्या? सेम टर्म था. Now this a minus b फॉर्मेट, तो a का डिफरेंशिएशन माइनस b का डिफरेंशिएशन करके लिखा बेटा. Now 25 a raised to log x फॉर्मूला क्या है? a raised to x. So a raised to x का क्या होता है? a raised to x log a into differentiation of x, ये जो x ऊपर है पावर. सेम बेटा a raised to x का यहां पे भी होगा, तो a raised to x log a into differentiation जो x है पूरा आपका log to base. ना बेटा ये पार्ट ऐसे लिखोगे, log to का ऐसे लिखोगे बेटा,
डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रैकेट का लॉग टू द बेस ए एक्स का क्या फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए फॉर्मूला चार्ट में आपका सबसे लास्ट फॉर्मूला है सिर्फ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स माइनस ये पार्ट ऐसे उतरेगा ये पार्ट ऐसे उतरेगा यहां पे भी log टू द बेस a x का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन x इंटू log a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x यहां तक हो गया बेटा अपना उसके बाद बेटा ये ना देखेंगे तो ये टर्म्स हमने ऐसे लिखा है 25 log टू द बेस sec x ना बेटा log 25 sec x का क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन sec x tan x अपॉन बेस ओके माइनस 16 ये पार्ट सेम लिखा है नाउ 2 इंटू ठीक है log 4 क्योंकि आप लिख सकते हो इसको ठीक है नाउ नेक्स्ट पार्ट आपका क्या होगा बेटा tan x का क्या होगा डिफरेंशिएशन sec square x अपॉन ये पार्ट आएगा बेटा नाउ 25 को मैंने चेंज किया है 25 को 25 मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर तो 2 इंटू लिख सकते हो 2 इंटू लॉग लिख सकते हो आपको पता होगा अगर 25 है इसका नाम 5 का स्क्वायर तो log में पावर आ गया जैसे तो वो 2 log 4 है और ऐसे ही 16 का होगा 2 log 4 हो गया ना बेटा अगर उसको देखो तो इसमें बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा ठीक है log 5 कैंसिल sec x कैंसिल तो खाली क्या बचेगा 2 tan x यहां पे इसमें बेटा बहुत कुछ कैंसिल होगा log 4 कैंसिल हो गया ठीक है tan x कैंसिल हो गया बचेगा आपका 2 into sec square x upon tan x यहां पे आप tan x कैंसिल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा ना बेटा नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हैं बेटा हम 5 का स्क्वायर तो बेटा 2 है अगर 2 अगर मैं sec क्यूब बना लूं log के पीछे डाल दूं क्या हो जाएगा sec स्क्वायर हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा 5 into log to the base 5 स्क्वायर यहां से यहां तो ऊपर हो गया ओके तो sec स्क्वायर into 2 tan x माइनस इक्वल हो बेटा सेम इधर 4 का स्क्वायर में मैंने 16 को 4 का स्क्वायर लिखा तो 2 tan को tan स्क्वायर हो जाएगा बेटा ना बेटा दिस इज गोइंग टू बी sec स्क्वायर फॉर्मूला क्या आपका फॉर्मूला है a raised to ठीक है a raised to log a function of x is equals to function of x तो ये पार्ट फंक्शन में मतलब sec स्क्वायर x बचेगा यहां पे 2 tan x बचेगा सेम यहां पे ये पार्ट कैंसिल होगा खाली tan स्क्वायर x बचेगा sec स्क्वायर x बचेगा और tan x बचेगा बेटा ना tan x एक tan x कैंसिल होगा तो आपको ये पार्ट सेम मिलेंगे सेम पार्ट में से सेम पार्ट घटाओगे तो 0 आएगा ओके बेटा एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं क्या किया यहां तक आपको समझ आएगा दोनों टर्म को डिफरेंशिएट किया इसमें क्या किया a raised to x का फॉर्मूला लगाया और इधर भी a raised to x का फॉर्मूला लगाया a raised to x का क्या होता है a raised to x log a into differentiation of x इधर भी a raised to x log a into differentiation of x उसके बाद बेटा जो इंपॉर्टेंट स्टेप है ये पार्ट का हमने डिफरेंशिएशन किया तो log टू द बेस 5 क्या होगा बेटा 1 अपॉन मतलब ये फॉर्मूला क्या है बेटा अपना log नहीं ये है log टू द बेस ax इसका फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन x into log a यहां पे भी चेंज किया यहां पे भी चेंज किया 1 अपॉन tan x into log into differentiation of sec x ये डिफरेंशिएशन tan x बाकी पार्ट सेम मतलब इतना पार्ट तो आपका सेम है ये पार्ट और ये पार्ट आपका सेम आ गया सिर्फ डिफरेंशिएशन को हमने सॉल्व किया दो नए टर्म्स निकाल लिए उसके बाद बेटा ना आप यहां पे देख सकते हो ठीक है कि हमने क्या किया है बेटा 25 को 5 का स्क्वायर मान के 2 आगे लिखे तो हमने 2 log 5x यहां पे भी 16 को भी यहां पे 16 जो है बेटा उसको 4 का स्क्वायर के 2 log 4 लिखा है ताकि बहुत कुछ कैंसिल होगा ये पार्ट इससे कैंसिल ये पार्ट इधर कैंसिल होगा बेटा ओके तो बचेगा यहां पे खाली 2 tan x इधर 24 को भी चेंज कर देगा उसको कहेंगे 5 का स्क्वायर 2 log 5 x यहां पे भी 416 को 4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर log 4x ठीक है आप tan x को अभी कैंसिल हो जाएगा आगे भी हमने कैंसिल किया कोई दिक्कत नहीं है ये क्या बन जाएगा इंपॉर्टेंट चीज ये पार्ट आपका क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x और यहां पे ये पार्ट क्या बन जाएगा तुम्हारा tan स्क्वायर x तो वो टर्म्स आएंगे कैलकुलेशन करके हो जाएगा ये थोड़ा लॉन्गर मेथड है सिंपल मेथड इससे भी सिंपल बेटा y इज इक्वल टू ये पार्ट दिया हुआ है आपको आप यहीं पे चेंज करो मतलब बिफोर डिफरेंशिएशन ही आप चेंज करो तो 25 को क्या लिखा 5 का स्क्वायर 16 को लिखा 4 का स्क्वायर अभी बेटा आप 2 को मैं sec के ऊपर ले जाऊंगा और यहां पे 2 को tan के ऊपर ले जाऊंगा तो बनेगा sec स्क्वायर x यहां पे tan स्क्वायर x बच गया बेटा 5 log the base 5 sec स्क्वायर x 4 to the log base 4 tan स्क्वायर x
अभी जब बेटा ये पार्ट क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x खाली, ये पार्ट tan स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, क्या होगा? अगर आपको y का वैल्यू 1 आया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव मी dy by dx इज इक्वल टू 0। क्यों? ये कांस्टेंट का क्या होता है बेटा 0। तो आप ऐसा पूरा चेंज करके बेटा सिंपल वे में कर सकते हो। ओके बेटा, यू कैन कॉपी दिस। बेटा दिस इज लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा, you can see this x square plus 4 raised to 4, x square plus 2 raised to 4 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 5। तो बेटा सिंपल सी बात है, u अपॉन v का रूल लगेगा। सो लेट y इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x will give me dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वेश्चन। ना बेटा u अपॉन v का रूल लगाओ, तो v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u into derivative of v upon v square. This will come as it is x raised to n का फॉर्मूला क्या बेटा 4 into x raised to 4 minus 1 that is 3 into differentiation of x. सेम है बेटा, ये ब्रैकेट आप ऐसे लिखोगे, रूट x का क्या होता है 1 upon 2 root x into differentiation of x. ओके बेटा, now please pay attention, 4 ऐसे लिखोगे, ये पार्ट ऐसे लिखोगे बेटा, ठीक है। जब आप स्प्लिट कर रहे हैं, हम स्प्लिट कर रहे हैं, तो जब यहां देखो ये x स्क्वायर प्लस 5 रूट में है, ये x स्क्वायर प्लस 5 रूट में 2 बार है, तो एक बार वो कैंसिल होगा, तो इधर इस वाले में 1 बचेगा, यस और नो बच्चे लोग। तो वही है x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। ओके, माइनस लिखा है। फिर वापस बेटा यहां ध्यान दीजिए सब लोग, ये पार्ट यहां पे आएगा, ये ऑलरेडी नीचे 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक बार है, एक 2 बार और आएगा, कितना टोटल कितना होगा 3 बार। ओके, 3 टाइम्स हो जाएगा, दिस इज 1 टाइम, दिस इज 2 टाइम्स, दोनों डिवाइड करें तो प्लस हो जाएगा, तो टोटल 3 टाइम्स होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा 2x 5 प्लस 0। ये पार्ट समझ में आया बेटा कैसे, प्लीज बता रहा हूं, ये 2 का 2 है, ये रूट एक्स प्लस 5 1 टाइम, यहां पे रूट एक्स प्लस 5 2 टाइम्स, दोनों डिवाइड में है तो ऐड हो जाएगा, तो रूट एक्स प्लस 5 रूट में x स्क्वायर प्लस 5 3 टाइम्स हो जाएगा, वही क्यूब लिखा है बेटा। नाउ क्या कॉमन है बेटा 2x x स्क्वायर प्लस 2 3 टाइम्स, यहां पे 4 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कॉमन लेंगे हम लोग, 2x कॉमन लेंगे। डिनोमिनेटर में रूट में x स्क्वायर प्लस 5 एक बार यहां पे 3 बार, तो एक बार हम लोग कॉमन ले लेंगे। इस वाले टर्म्स में क्या बचा ओनली 4, यू कैन सी, माइनस इसमें क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2 एक बार बचा, x स्क्वायर प्लस 5 2 टाइम्स बचा रूट के अंदर, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो खाली अपने पास ये बचेगा बेटा, यस, रूट में x स्क्वायर प्लस 5 2 टाइम्स बचा, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ पे आपको लिखना है बेटा ना, ये पार्ट ऐसे लिखना है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये पार्ट मिलेगा 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4 जा 8x स्क्वायर 2 5 जा 10 4 जा 40 माइनस x स्क्वायर माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे आपको 7x स्क्वायर प्लस 38 मिल जाएगा बेटा। ये पार्ट ऐसे लिखना है ना, प्लीज पे अटेंशन बेटा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 रूट में मतलब उसको 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो उसको 1 लिखेंगे, दोनों का पावर अब ऐड हो जाएगा, a रेज़ टू m इनटू a रेज़ टू n, 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1/2 कितना होगा बेटा 3/2, आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। Okay beta, so we have completed question number 3, you can copy this question. So students, let's start with the question number 4. In question number 4 beta, you have this table which indicate that if x value is 2, then f of x will be 1, g of x will be 6, f dash x will be minus 3 and g dash x will be 4. And if it is 4, then value will be 3, 4, 5 and minus 6. And if the x value is 6, then f of x will be 5, gx will be 2, f of x will be minus 4 and g dash x will be 7. So ऐसे टेबल आपको दिया है and you have to solve 4 questions. Now what is your first question? Please pay attention. First question and fourth question is same. Second and third are also same. Now, in first question, you have r of
इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मींस टू फंक्शंस यहां पे एक साथ है बेटा, ओके। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल गिव मी आर ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, आर डैश एक्स, ओके। डिफरेंशिएशन कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं हम बेटा, डैश। सो आर डैश एक्स, ओके बेटा, यहां पे dy बाय dx नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लोग r डैश x लिखेंगे, इज इक्वल टू f का क्या, जैसे अगर r का r डैश होता है तो f का क्या होगा, f डैश, वेरी गुड। सो f डैश gx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ gx, ओके बेटा, कैसे लिखते हैं हम लोग, f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x। सो ये पार्ट ऐसे लिखोगे, g ऑफ x ऐसे लिखोगे। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ gx, g डैश x, प्लीज पे अटेंशन, जो भी अल्फाबेट रहेगा अगर आप डेरिवेटिव लिख रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप उसका g डैश लिखना है, f का f डैश, g का g डैश, r का r डैश, s का s डैश। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, r का क्या होगा बेटा, r डैश, f का हो गया f डैश x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये ब्रैकेट को हम लोग x मान के चलेंगे बेटा। सो दिस विल बी डेरिवेटिव ऑफ x। इन नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x क्या होता है बेटा, g डैश x। नाउ पुट अप द वैल्यूज, बुक में बोला है when x is equals to 2, हमें r dash 2 पता करना है, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है, r dash 2। तो बेटा x की जगह पे 2 होना चाहिए, तो x की जगह 2 यहां पे लिखोगे, x की जगह 2 यहां पे पुट अप करोगे, x की जगह यहां पे 2 पुट अप करोगे। नाउ डायरेक्टली वी विल पुट अप द वैल्यूज, f dash, व्हाट इज g of 2, मतलब जब x 2 था तो g कितना है, x जब 2 है तो g कितना है बेटा, 6, यहां पे लिखा है 6। x जब 2 है तो g डैश कितना होता है, g डैश ये 4, तो वैल्यू पुट अप किया 4। ना बेटा f ऑफ 6 कितना होगा, 6 में f ऑफ कितना होता है, 6 कौन सा बेटा ये है, इसमें f ऑफ का वैल्यू देखो, f डैश का वैल्यू कितना बेटा, f डैश का वैल्यू कितना बेटा, -4, तो इधर क्या लिखो बेटा, -4। ये पूरा पार्ट क्या होगा बेटा, -4 इनटू 4, -4 इनटू 4 कितना हो जाएगा बेटा, 16। समझ में आया, हमने डेरिवेटिव फॉर्म दिखाया, फिर वैल्यू पुट अप किया और फिर टेबल वाइज वैल्यू पुट अप किया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया बेटा, बिकॉज़ इट इज सिमिलर टू 1। हियर यू हैव s of x is equal to g of dash, okay, the g function, double g function। डिफरेंशिएटिंग will give me s dash x हो जाएगा बेटा, मैंने आपको डैश बोला। डेरिवेटिव ऑफ इंटायर क्वेश्चन, डेरिवेटिव ऑफ g क्या होगा बेटा, g डैश, वेरी गुड। g का क्या होगा बेटा, g डैश, g डैश x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, ओके बेटा। वेल अब वैल्यू पुट अप करेंगे हम लोग, x को कितना 6 बोला तो s डैश 6 हो गया इनटू इक्वल टू g डैश g ऑफ 6 इनटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ g, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ g बेटा, g डैश, तो g का क्या होगा, g डैश 6, x के लिए हमने 6 पुट अप किया बेटा। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ g6 एंड g डैश 6, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, जब अपना x है 6 तो g कितना है बेटा, g कितना है 2 एंड g डैश कितना है 7, तो इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 7। नाउ जब अपना वैल्यू 2 है तो g डैश कितना है, वैल्यू कितना है बेटा 2, तो g डैश हम लोग g डैश 4, तो इसका ओवरऑल वैल्यू कितना होगा 4, 4 7 जा 28। समझे बेटा कैसे लिखना है पहले, अब जैसे g6 बोलते हो तो 6 ढूंढो, इसमें से 6 किधर है, उसमें g का वैल्यू ढूंढो 2, तो हमने लिखा 2। फिर 2 में आपको g डैश ढूंढना है, तो 2 ये रहा बेटा, आपको उसमें g डैश ढूंढना है 4, तो ये ओवरऑल कितना होगा 4, 4 7 जा 28। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया बच्चा। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज हियर बेटा, r of x equal to g of bracket 3 plus fx। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x will give me बेटा r का क्या होगा बेटा, r dash x into differentiation with question, g का क्या होगा बेटा, g dash x into derivative of x, g dash x into derivative of x, वेरी गुड। तो g dash x ऐसे लिखेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट व्हाट विल बी देयर, 3 का क्या हो जाएगा बेटा 0 और fx का क्या होगा बेटा f dash x, याद रखो fx का क्या होगा f dash x। नाउ इसमें x इक्वल टू 4 पुट करने को है क्योंकि अपने को r dash 4 चाहिए,
तो x इक्वल्स टू 4 पुट करोगे, यहां पे 4 वैल्यू पुट अप करोगे, यहां पे 4 वैल्यू पुट अप करोगे, तो वैल्यू पुट अप कर दिया बेटा। नाउ व्हाट इज वैल्यू ऑफ f4? तो अपना x ये रहा 4, इसमें f कितना बेटा 3, तो इसका वैल्यू कितना लिखोगे बेटा 3। 4 पे f डैश कितना होता है, 4 पे f डैश 5, तो ये भी कितना हो गया 5। नाउ बेटा दिस इज 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, तो 6 में g डैश कितना है, 6 में g डैश 7, तो इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा 7, 7 5 जा 35। समझ में आया बेटा वैल्यू कैसे पुट अप करना है? एक बार फिर से मैं पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं। x की जगह पे 4 पुट किया है क्योंकि अपने को इक्वेशन में r डैश हो चाहिए। सो 4 पे f डैश कितना है, 4 पे f डैश, यहां f डैश बेटा 5, तो वैल्यू कितना पुट अप करो 5। 4 पे f कितना है, 4 पे f कितना है 3, तो इसका वैल्यू 3। नेक्स्ट 3 प्लस 3 6 हो जाएगा बेटा। अब 6 पे g डैश कितना, ये रहा 6, इस पे g डैश कितना बेटा 7, तो 7 हो गया, 7 5 35। ओके बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। हियर यू हैव f of x is equal to f in bracket 9 minus fx। सो बेटा व्हाट विल बी देयर, आप डिफरेंशिएट करोगे, यू विल s का क्या हो जाएगा s डैश, डिफरेंशिएशन ऑफ क्वेश्चन। f का क्या होगा बेटा f डैश x into derivative of x, है ना, f of x into derivative of x। f डैश x को आप ऐसे लिखोगे, यहां पे डेरिवेटिव क्या होगा बेटा 9 का 0 माइनस f का क्या हो जाएगा बेटा f डैश x, f का क्या हो जाएगा बेटा f डैश x। हर एक अल्फाबेट का नेक्स्ट लाइन क्या होता है डेरिवेटिव, f डैश g डैश r डैश t डैश ऐसा। तो यहां पे मिल गया when x is equals to 4 बोला है, यहां पे 4 पुट अप करो, यहां पे 4 पुट अप होगा, यहां पे 4 पुट अप होगा। नाउ when x is 4, f कितना था बेटा, f कितना था 3, तो ये वैल्यू कितना आएगा 3, तो 9 माइनस 3 6 हो गया। 6 पे f डैश कितना है, 6 पे f माइनस 4, तो ये वैल्यू माइनस। 4 पे f डैश कितना है बेटा, 4 पे f डैश कितना है 5, तो ये हो गया 0 माइनस 5 इज माइनस 5, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 20। Okay beta, did you understand what is there in this question? Okay, very simple question, you have to pay attention about the table values and simple format. Okay, you can copy this. Next question is question number 5. Here you have f dash 3 is minus 1, g dash 2 is 5 and g of 2 is 3, मतलब तीन वैल्यू आपको दिया है और y equal to f of gx भी दिया है आपको। So y is equal to f of gx लिखेंगे, अपने को बेटा dy by dx करना है। What is dy by dx? डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया तो y का क्या होगा बेटा dy by dx, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। तो बेटा f का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश, वेरी गुड, f डैश gx इनटू डेरिवेटिव ऑफ gx। तो ये टर्म ऐसे हो जाएगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ gx क्या होगा बेटा g डैश x, तो g डैश x हो गया। नाउ बेटा आपको dy by dx x इक्वल टू 2 चाहिए, तो x की जगह 2 पुट अप कर दो, तो when x इक्वल्स टू 2, this part will be x इक्वल टू 2 will be f डैश g of 2 डॉट g डैश 2। तो बेटा 2 पे g डैश 2 का वैल्यू कितना है 5, g of 2 कितना है 3, तो f डैश 3 कितना होगा, f डैश 3 कितना हो गया -1, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 विल गिव मी -5। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, समझ में आया? हमको जो दिया था बेटा उसका डिफरेंशिएशन किए और फिर सिलेक्टेड चीजों का वैल्यू पुट अप करते हुए अपना आंसर आ गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है बेटा, बस थोड़ा लेंथी है। f of 1 4, g of 1 3, f dash 1 3, g dash 1 4। ओके, दिया 4 वैल्यू दिया बेटा अपने को और यहाँ पे h of x बोला है रूट में 4 f of x plus 3 g of x। तो बेटा अपना स्टार्टिंग वहीं से होगा, अपने को h डैश चाहिए, h डैश 1 चाहिए, तो h डैश के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, डैश मतलब यस डिफरेंशिएशन। तो हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x विल गिव मी h डैश x इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटायर टर्म, रूट x का क्या होता है बेटा 1 अपॉन
2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो ये टर्म तो ऐसे हो जाएगा बेटा, इंटू यहां पे a प्लस b का फॉर्मेट है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म। ओके बेटा, ये टर्म ऐसे नीचे लिखा, यहां डिफरेंशिएशन ऑफ 4x का 4 तो कॉमन हो जाएगा, f ऑफ x का क्या होगा बेटा f डैश x, और 3 बाहर निकल जाएगा, g ऑफ x का होगा बेटा g डैश x। यहां तक अपना डिफरेंशिएशन खत्म हो गया बेटा। ना क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो तो x डैश 1 चाहिए, मतलब x की जगह पे 1 पुट अप करना है, तो x की जगह पे 1 पुट अप किया तो h डैश 1 हो गया, यहां पे 1 यहां पे 1, और इन दोनों पोजीशन पे भी हम लोग क्या लिखेंगे बेटा 1, तो वैल्यू पुट अप कर दिया। नाउ बेटा f ऑफ 1 कितना है, व्हाट इज f ऑफ 1 4, g ऑफ 1 3, तो वैल्यू पुट अप करते जाओ, f डैश 1 इज 3 एंड g डैश 1 इज 4, वैल्यू पुट अप किया, सॉल्व करते करते 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, ये 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। प्लीज पे अटेंशन, 25 का स्क्वायर रूट है, कुछ स्टूडेंट्स 25 टू द 50 लिख देंगे, ठीक है। सो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 5, 5 टू द 10, 24, 24 अपॉन 10, 2 से डिवाइड करते 12 अपॉन 5। ओके बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, प्लीज इसे प्रैक्टिस करो so that you can solve it by your own. Okay students, you can copy this. So beta, next question is question number 7. Beta, here you can see y is equal to sin 2x minus 2 sin x, ये आपको दिया हुआ बेटा, एंड आपको x का वैल्यू पता करने के लिए बोला है। ओके, सो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to differentiation of entire term. Now in this question you have dy by dx is equal to 0, तो इसका वैल्यू पुट करते हैं 0 is equal to differentiation of first term minus differentiation of second term, जिसमें से 2 कॉमन लेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट है। Now what is differentiation of sin 2x, cos 2x into differentiation of 2x, है ना, sin x का क्या होता है cos x into differentiation of 2x minus 2 into cos x, cos 2x ऐसे आएगा बेटा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 2x 2, तो 2 आगे आ जाएगा बेटा 2 cos 2x minus 2 cos x होगा बेटा। नाउ व्हाट इज cos 2 थीटा, 2 cos by थीटा minus 1, ये फार्मूला है, आपको 11 में पढ़ा होगा बेटा आपने, cos 2 थीटा is equals to 2 cos square थीटा minus 1, तो फार्मूला यूज किया बेटा हमने, तो cos 2x क्या हो जाएगा 2 cos square x minus 1, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, या फिर आप 2 से डिवाइड भी कर सकते हो बेटा। ओके, सो आप जैसे करते हो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर माइनस 2 cos x, फिर इसमें से बेटा इसको मैंने अरेंज किया, इसको आगे लेके आया, इसको पीछे लिखा, नाउ 2 से डिवाइड कर दिया, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो फाइनली क्या आपको मिला 2 cos स्क्वायर x, 2 से डिवाइड करने के बाद माइनस cos x माइनस 1, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया बेटा। आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 1, तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1, तो सॉल्व करते करते तो यहां पहुंच जाएंगे बेटा। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आप यहां पहुंच जाओगे। नाउ फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0, सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0, cos x इज इक्वल टू 1, अब cos 1 कितने पे होता है बेटा 0 नहीं तो 360, तो 0 नहीं तो 360 मैंने लिया है, यहां पे आप cos x का बेटा -1.2 आएगा, और ये 120 पे होता है, ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई बाय 3, सो x के फाइनल तीन आंसर आए 0 2 पाई एंड 120, इट इज 2 पाई बाय 3। ओके बेटा, यू कैन कॉपी दिस क्वेश्चन। ओके बेटा, नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 इज सिमिलर टू योर सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6, you can solve by your own। Okay beta, so we have completed your first exercise of derivative, that is 1.1। Okay beta, so thank you, please keep watching my videos।